students, welcome to Dakshina E-Classroom. So guys, how are you all? I hope you all are well and you are studying very well. So guys, we'll be starting our new lecture of center of mass. In the last lecture, we had seen the questions on acceleration of center of mass and then spring mass system. So in acceleration of center of mass, what we had seen that if the net force on the system is not changing, then acceleration of center of mass will not change. And if acceleration of center of mass is not changing, then the velocity which was changing, it will change at the same rate, because acceleration is the rate of change of velocity. So everything which was going to happen initially, that is going to happen to the center of mass now. So if we talk about the center of mass, like we had taken questions where the stone or the projectile was breaking at some point on its trajectory. So if it is happening, if it is breaking because of some internal changes in the system, still after that the center of mass is going to follow the same path, it is going to follow the same process if the net force is not changing on the particle. And we had seen that in most of the cases we will get the case in which the center of mass, the broken particles will fall to the ground at the same time, and because of which we can say that center of mass will follow the same path and net force on the system will not change. Initially it was a capital M mass, finally it was M1 plus M2 plus M3 plus M4, we can take any number of particles, and the net mass on the system was still same and the net force on the system was still same. It was mg, capital Mg initially, and finally it was capital Mg. So center of mass is going to follow the same path. And then in spring mass system we had seen the maximum compression and maximum extension when it is going to happen. So we had found out that the maximum compression or maximum extension will happen when both the blocks are going to have the same velocity. Okay? And again in that case we had observed how it is going to happen. How it is going to happen if we have difference in velocity before the maximum compression or maximum extension, after the maximum compression or maximum extension, how it is gaining that maximum compression or extension. Clear? So now today we will be discussing about the center of mass frame. So there are tricks, or you can say this is a way to solve some problems in easier way. आपने जो प्रॉब्लम्स पहले किए हैं आप उसको एक लाइन में कर सकते हैं यूजिंग द सेंटर ऑफ मास फ्रेम. सो फर्स्ट वी विल स्टडी द सेंटर ऑफ मास फ्रेम एंड वी विल डिराइव सम इक्वेशंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ मास फ्रेम, and then we will solve the problems which we have done in the previous cases in conservation of linear momentum. So you can write center of mass frame. Clear? So first we will deal with a two system particle. We have two systems, or two particle system. So we will deal with two particle system in which we'll have two masses m1 and m2, which will have velocity v1 and v2, and then we can use more than two particles. Clear? So now if I have a system where I have, this is m1, it is moving with v1, and this is m2 which is moving with velocity v2. Can we find out the velocity of center of mass? Yes, velocity of center of mass is going to be m1 v1 plus m2 v2 divided by m1 plus m2. This is the velocity of center of mass. Can I find out the velocity of first particle with respect to center of mass? Now what we have done, we have m1 and m2. We can find out the location of center of mass. I have found out the location of center of mass, and I am sitting on the location of center of mass, and now I am observing m1 and m2. So I am sitting on the center of mass frame and I am observing m1 and m2. So can I find out the velocity of 1 and velocity of 2 with respect to center of mass? Yes. Velocity of first object with respect to center of mass will be velocity of first object minus velocity of center of mass. So it is velocity of first object is v1 minus velocity of center of mass. So it is m1 v1 plus m2 v2 divided by m1 plus m2. Please do it, solve it. What will get? Velocity of 2 with respect to center of mass. So it will be v2 minus vc is equal to v2 minus m1 v1 plus m2 v2 divided by m1 plus m2. Clear? So from here we will get, this will be m1 v1 plus m2 v1 minus m1 v1 minus m2 v2. So m1 v1 plus m2 v1 minus m1 v1 minus m2 v2 divided by m1 plus m2. This will get cancelled. So we have m2 into v1 minus
v2 divided by m1 plus m2. This is the velocity of 1 with respect to center of mass. Velocity of 1 with respect to center of mass is m2 v1 minus v2 by m1 plus m2. From here what we will get? v2 m1 plus v2 m2 minus m1 v1 minus m2 v2 divided by m1 plus m2. So in this case what we will get? m2 v2 will get cancelled. So m1 into v2 minus v1 divided by m1 plus m2. Or I can write, if I want to write v1 minus v2, I can write minus of m1 into v1 minus v2 divided by m1 plus m2. Clear? Now I want to find out the kinetic energy with respect to center of mass. Kinetic energy with respect to center of mass. Clear? Or total energy, I will try to find out the total energy of the system. ठीक है, तो हम लोग कैलकुलेट करते हैं what is the total energy of the system. Total energy, total kinetic energy of the system. ठीक है, I represent it with KT. So K total energy will be, क्या होगा ये? half m1 v1 square plus half m2 v2 square plus half m3 v3 square plus up to half mn vn square. Clear? Where v1 v2 v3, these are the magnitude of their velocity, or we can say speed. So here what we have, this is the total kinetic energy of the system. Now we have only two particles, so I will just write this thing. Clear? If we have n numbers of particles, we can write that way. Now what I can write? Half m1 v1, velocity of 1. From here what I can write? Velocity of 1 is equal to, now because I am observing from the center of mass, so I will try to write the velocity from the center of mass. So v1 can be written as velocity of 1 with respect to center of mass plus velocity of center of mass. Velocity of any object with respect to ground is equal to velocity of that object with respect to a certain frame plus velocity of that frame. This is clear in our mind. So if an object is kept in a frame, if a man is sitting on the truck or if a man is walking on the truck, then when we are observing from ground, what we will say? Velocity of man in the truck plus velocity of truck is the total velocity of man with respect to ground. खुद इतना चल के गया और ट्रक उसको 1 किलोमीटर ले गया. That is the velocity of truck from ground. So velocity of 1 with respect to ground will be velocity of 1 with respect to center of mass plus velocity of center of mass. Similarly, velocity of 2 is equal to velocity of 2 with respect to center of mass plus velocity of center of mass. Now here I can write velocity of 1. So v1 with respect to center of mass plus velocity of center of mass का square. Now what we'll do? This is a vector. This is another vector. We can find out the resultant. We can take its magnitude and then we can write it here. है ना? तो यहाँ पे क्या आएगा? Magnitude. So first what we'll have to do? ऐसा नहीं करना इसका magnitude ले लिए, इसका magnitude ले लिए. No. First these two vectors are to be added. इन दोनों vectors को add करेंगे and then we'll take the magnitude. इतना तो हमारे दिमाग में है ना? इतना तो आप लोगों को समझ में आता है. इतना सारा physics पढ़ लिया. Plus half m2 into velocity of 2 with respect to center of mass plus velocity of center of mass and इसका square. Clear? So this is the total kinetic energy of the system. Total kinetic energy of the system. Or what I can write, if I have n numbers of particles, I can write half or sigma. ठीक है, इसको जो मैंने पहले एक्सप्रेशन लिखा था उसको हम क्या लिख सकते हैं? सिग्मा हाफ एम आई वी आई स्क्वायर. ठीक है, एंड वेयर आई विल वेरी फ्रॉम 1 to n. m1 v1 स्क्वायर हाफ m1 v1 स्क्वायर हाफ m2 v2 स्क्वायर हाफ m3 v3 स्क्वायर. फिर इसको हम क्या लिख सकते हैं? सिग्मा i इज फ्रॉम 1 to n हाफ m i इंटू यहाँ पे क्या जाएगा? v i विथ रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास प्लस v ऑफ सेंटर ऑफ मास और उसका फिर स्क्वायर. ठीक है, यही किया. v1c v2c और ये वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास रहेगा हमेशा. सो बेसिकली हाफ m1 v1c प्लस vc स्क्वायर हाफ m2 v2c प्लस vc स्क्वायर हाफ m2 v2c प्लस vc स्क्वायर हाफ
m3 v3c vc square. So this is the way we can write. Clear? So यहाँ से अगर इसको मैं लिखूं, हम टू पार्टिकल पे आएंगे, पहले I लेकर के करते हैं तो वहां से एक चीज आपको मिलेगी. So what I can write, half I is equal to 1 to n. Now what I'll do, I'll expand this. So half I from 1 to n, half mi, इसको क्या लिख सकते हैं, vic square plus vc square plus 2vic into vc. ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं. नाउ दिस इज अ कांस्टेंट. ये क्या है, एक कांस्टेंट है. अब कांस्टेंट एज इन इट इज नॉट चेंजिंग विद आई. जब आप सिग्मा की बात कर रहे हो तो दिस इज चेंजिंग विद आई. m1 m2 m3 m4 ये तो सबके साथ सेम ही रहेगा ना. तो अब यहाँ पे हम जब सिग्मा को लेके जाएंगे तो हम क्या लिख सकते हैं, बेसिकली यहाँ पे क्या कर रहे हैं, आई के साथ ये चेंज होता जा रहा है. तो हमारे पास इतने सारे नए टर्म आएंगे. आई यहाँ पे आई को 1 रखा तो m1 v1c, m2 v2c, m3 v3c. बट इस केस में जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे इससे, दिस इज अ कांस्टेंट, सबके साथ vc आएगा, सभी के साथ vc आएगा. तो नाउ आई कैन राइट हाफ सिग्मा, यहाँ पे हाफ तो कांस्टेंट है, mi vic स्क्वायर, हाफ mi vic स्क्वायर प्लस हाफ सिग्मा, इसमें क्या आ जाएगा, vc बाहर आ जाएगा. vc तो चेंज नहीं हो रहा ना, vc तो सबके साथ है. तो vc स्क्वायर सिग्मा mi है ना, सिग्मा mi, इसको मैंने मल्टीप्लाई किया यहाँ पे. तो दीज टू आर चेंजिंग विद आई, तो ये सिग्मा के अंदर रहेंगे. इन दोनों में क्या है, इन दोनों में जब आप इसको और इसको मल्टीप्लाई कर रहे हो, इसमें ये चेंज हो रहा है आई के साथ, बट दिस इज नॉट चेंजिंग, सबके साथ रहेगा वो, तो उसको हमने बाहर कर दिया. प्लस इसमें क्या क्या आ जाएगा, हाफ और ये 2 कैंसिल हो गया तो गायब. उसके बाद mi vic और फिर यहाँ पे vc है तो इसको बाहर ले आओ. तो अब अंदर क्या बचा, सिग्मा में हमारे पास बचा सिर्फ सिग्मा vic mi. क्लियर है? इसको हमने क्या किया, इसको यहाँ अंदर मल्टीप्लाई किया और फिर सेपरेटली हमने सिग्मा लिया, अलग अलग ऐड करेंगे. अब इसके बाद क्या हुआ, सो इट इज लाइक एन इंटीग्रेशन. सिग्मा को अगर आप बहुत छोटा 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 कर दो वो इंटीग्रेशन बन जाता है. ठीक है, अब इसको हम लोग आगे देखते हैं. तो यहां से हमारे पास आ गया टोटल काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ सिग्मा mi vi with respect to c square plus half vc square sigma mi plus vc sigma vic mi. क्लियर? इतना है हमारे पास. अब ये जो चीज है, व्हाट इज दिस, ये जीरो है. मैं बोल रही हूँ ये जीरो है. अब आप बताओ कैसे, दिस क्वांटिटी इज जीरो. ठीक है, तो इसको सोचो, पॉज कर लो और सोचो, क्योंकि आई एम गोइंग टू टेल दिस. तो अब यहाँ पे क्या है, ये जो आपके पास आया है mi vic और उसका समेशन. तो बेसिकली क्या है, m1 v1c प्लस m2 v2c प्लस m3 v3c. सो बेसिकली आप क्या कर रहे हो, you are sitting on the center of mass, you are sitting on the center of mass and you are observing all the objects. सबको ऑब्जर्व कर रहे हो सिस्टम में जो भी ऑब्जेक्ट्स हैं, and you are calculating the velocity of momentum of all those objects in the system with respect to center of mass. This is what m1 into v1 with respect to center of mass. So this is the momentum of first with respect to center of mass. This is momentum of second with respect to center of mass. This is momentum of third with respect to center of mass. Clear ये चीज? अब यहाँ पे क्या है, आप सबको, अगर आप सेंटर ऑफ मास पे बैठे हो और आप सबको ऑब्जर्व कर रहे हो, सारी चीज को ऑब्जर्व कर रहे हो और उनका समेशन ले रहे हो, तो जो यहाँ पे जो नेट आएगा वो क्या होगा, टोटल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम विथ रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास. क्लियर ये चीज? अब हम ये बोल रहे हैं कि भाई पूरे सिस्टम का मोमेंटम हम सेंटर ऑफ मास से बैठ के ऑब्जर्व कर रहे हैं. तो सेंटर ऑफ मास जो है वो तो सारे के सारे जो ऑब्जेक्ट्स हैं उनकी जो कंबाइंड वेलोसिटी आएगी व्हेन वी कैलकुलेट m1 v1 plus m2 v2 plus m3 v3 डिवाइडेड बाय टोटल मास ऑफ द सिस्टम, उससे कैलकुलेट करके जो वेलोसिटी आती है उस वेलोसिटी से वो खुद चल रहा है. मतलब पूरे सिस्टम के मोमेंटम से तो खुद सेंटर ऑफ मास चल रहा है. क्लियर है? पूरे सिस्टम के मोमेंटम से सेंटर ऑफ मास का जो मोमेंटम आता है, हम लोग इक्वेशन क्या लिखते हैं,
हम लोग लिखते हैं वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास इज इक्वल टू m1v1 प्लस m2v2 प्लस अप टू mn डिवाइडेड बाय टोटल मास ऑफ द सिस्टम। टोटल मास ऑफ द सिस्टम, तो यहां से हमारे पास क्या आया, m टोटल इनटू वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास इज इक्वल टू p नेट ऑफ द सिस्टम, p नेट ऑफ द सिस्टम। अब ये क्या है, दिस इज द मास ऑफ टोटल, दिस इज द मास ऑफ सेंटर ऑफ मास। जो सेंटर ऑफ मास है वो तो पूरे सिस्टम का मास लेके चलता है ना, तो सेंटर ऑफ मास का मास क्या होता है, इट इज द टोटल मास ऑफ द सिस्टम। तो दिस इज द मास ऑफ सेंटर ऑफ मास, दिस इज वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास। सो p net of the system is nothing but p of center of mass। ठीक है, जो पूरे सिस्टम का मोमेंटम है, जो पूरे सिस्टम का लीनियर मोमेंटम है, दैट इज द लीनियर मोमेंटम ऑफ सेंटर ऑफ मास। क्लियर है, जो पूरे सिस्टम का मोमेंटम है दैट इज द मोमेंटम ऑफ सेंटर ऑफ मास। जो पूरे सिस्टम का मास है, जो पूरे सिस्टम का मास है दैट इज द मास ऑफ द सेंटर ऑफ मास। और जो पूरे सिस्टम की कंबाइंड वेलोसिटी आती है दैट इज द वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास। तो आप सेंटर ऑफ मास पे ही बैठ के पूछ रहे हो कि व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास, तो क्या आएगी, कितनी आएगी, 0। अगर मैं किसी फ्रेम पे बैठ जाऊं, व्हाट आई फील दैट आई एम एट रेस्ट एंड द वर्ल्ड इज रिवॉल्विंग अराउंड मी, या जो भी है पूरी दुनिया घूम रही है। सो विथ रिस्पेक्ट टू मी व्हाट इज वेलोसिटी ऑफ माई सेल्फ, माई वेलोसिटी इज 0 विथ रिस्पेक्ट टू मी। सेंटर ऑफ मास पे बैठ के आप बोल रहे हो कि सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी क्या है, सेंटर ऑफ मास पे बैठ के आप बोल रहे हो कि सेंटर ऑफ मास का मोमेंटम क्या है। सो विथ रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास, विथ रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास व्हाट विल बी द, ये जो अपने पास आया मोमेंटम ऑफ द सिस्टम विथ रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास। तो सिस्टम का जो मोमेंटम है, सिस्टम का जो मोमेंटम है वही सेंटर ऑफ मास का मोमेंटम है। मेरी जो वेलोसिटी है वही मेरे बाजू वाले की वेलोसिटी है, तो मेरे रिस्पेक्ट में उसकी वेलोसिटी क्या हुई, 0 हुई। जो भी सिस्टम का मोमेंटम है वही सेंटर ऑफ मास का मोमेंटम है ना। सेंटर ऑफ मास उसी मोमेंटम से घूम रहा है, उसका मोमेंटम उतना ही है जितना पूरे सिस्टम का मोमेंटम है। तो उसको क्या लगेगा कि पूरा सिस्टम जो है वो मेरे रिस्पेक्ट में रेस्ट में है, पूरे सिस्टम का मेरे रिस्पेक्ट में कोई मोमेंटम नहीं है। तो जैसे यहाँ पे हमने देखा कि मोमेंटम ऑफ द सिस्टम एंड मोमेंटम ऑफ सेंटर ऑफ मास आर सेम, इट मींस मोमेंटम ऑफ सिस्टम विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास क्या हो जाएगा, मोमेंटम ऑफ सिस्टम माइनस मोमेंटम ऑफ सेंटर ऑफ मास, momentum of system minus momentum of center of mass is equal to 0. So this quantity is going to be 0. This quantity is going to be 0. This quantity is going to be 0. और अगर आप उसको दूसरे तरीके से सॉल्व करना चाहते हो तो इसी को what I can write? So what I can write, m1 v1c plus vc plus m2 v2c plus vc. Velocity of one is with respect to center of mass plus velocity of center of mass divided by m1 plus m2, यही लिख सकते हैं ना, v1 is equal to v1c plus vc। अब यहां से अगर इसको सॉल्व करोगे तो मैंने इसको मल्टीप्लाई किया, इसको मल्टीप्लाई किया, m1 v1c plus m2 v2c माइनस प्लस m1 plus m2 into vc। ठीक है, m1 v1c plus m2 v2c, m1 vc plus m2 vc, m1 vc plus m2 vc। इसको डिवाइड किया m1 plus m2, इसको डिवाइड किया m1 plus m2, ये कैंसिल हो गया। एंड हियर वी हैव वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास, इधर तो वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास है ना, एंड दिस इज आल्सो वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास गया। तो यहां से हमारे पास क्या आ गया, m1 v1c, और ये तो क्या है, दिस इज अ कांस्टेंट। सो बेसिकली वी हैव m1 v1c प्लस m2 v2c डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 इज इक्वल टू 0। अब ये तो 0 होने से रहा, दिस इज अ मास ऑफ द सिस्टम, ये तो 0 होने से रहा, मतलब दिस इज गोइंग टू बी 0। और यही क्या है, यही है दिस थिंग, m1 v1c प्लस m2 v2c। तो ये पूरा क्वांटिटी क्या हो गया, 0 हो गया। सो बेसिकली आप सेंटर ऑफ मास पे बैठ के पूछ रहे हो कि व्हाट इज द मोमेंटम ऑफ द सिस्टम, है ना। तो सेंटर ऑफ मास का जो मोमेंटम वही सिस्टम का मोमेंटम, तो सेंटर ऑफ मास के रिस्पेक्ट में सिस्टम का मोमेंटम विल बी 0, तो दिस क्वांटिटी विल बी 0। सो नाउ वी हैव k total is equal to half sigma mi vi c square plus half vc square and sigma mi। sigma mi मतलब i is varying from 1 to n, so sigma mi मतलब m1 plus m2 plus m3 plus up to mn। so क्या बन जाएगा, this is the total mass of the system, m total। तो क्या आ जाएगा, m total। क्लियर है ये चीज। अब जब आप बात करोगे, इफ यू वांट टू राइट काइनेटिक एनर्जी ऑफ सेंटर ऑफ मास, काइनेटिक एनर्जी ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या होगा,
So center of mass half into mass of center of mass into velocity into square of velocity of center of mass. तो half m of center of mass कितना होता है total mass of the system, तो mt half m v square vc square. So this is the kinetic energy of center of mass and इसका मतलब ये क्या है half mt into vc square. This is nothing but kinetic energy of center of mass. Also अगर मुझे लिखना है kinetic energy of the system, kinetic energy of the system with respect to center of mass, है ना, I have so many particles and I want to write the kinetic energy of the system with respect to center of mass. So what I'll do, I'll calculate the velocity. Center of mass पे हम बैठ गए and now I want to find out the kinetic energy of system with respect to center of mass. तो एक एक करके सारे ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी निकालेंगे with respect to center of mass, that is this, और सबका मास लिखेंगे. ओके भाई इसकी वेलोसिटी है इतनी मेरे रिस्पेक्ट में, आई एम द सेंटर ऑफ मास, इसकी वेलोसिटी मेरे रिस्पेक्ट में इतनी है, तो हाफ m1 v1 स्क्वायर जो भी इसकी वेलोसिटी आई विद रिस्पेक्ट टू मी उतना स्क्वायर, हाफ m2 इसकी वेलोसिटी का स्क्वायर, हाफ m3 इसकी वेलोसिटी का स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू मी. सो बेसिकली हाफ m1 v1 विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास स्क्वायर, हाफ m2 v2 विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास स्क्वायर. सो यहाँ पे क्या आ जाएगा, इफ आई वांट टू राइट दी kinetic energy of the system with respect to center of mass, two particle system के लिए half m1 velocity of one with respect to center of mass उसका स्क्वायर, यहाँ पे आप क्या ले लोगे मैग्नीट्यूड, ठीक है, हाफ m2 velocity of two with respect to center of mass और उसका स्क्वायर. क्लियर है ये चीज. तो दिस इज द kinetic energy with respect to center of mass, kinetic energy of system with respect to center of mass, या फिर आप बोल सकते हो टोटल काइनेटिक एनर्जी, मतलब काइनेटिक एनर्जी ऑफ, या सिस्टम ही ले लो, काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिस्टम विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास एंड दिस इज काइनेटिक एनर्जी ऑफ सेंटर ऑफ मास. तो अब दिस इज इक्वल्स टू दिस, तो इसको मैं क्या बोल सकती हूँ, दिस इज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिस्टम विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास. सो आई कैन राइट टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम व्हिच इज total kinetic energy of the system which is here, this is the total kinetic energy. Total kinetic energy of the system is equal to kinetic energy of system with respect to center of mass, kinetic energy of system with respect to center of mass plus kinetic energy of center of mass. ऐसा लिख सकते हैं. So total kinetic energy, here we had one more term in total kinetic energy. वहां पे क्या आ रहा था, यहाँ पे आ रहा था सिग्मा मोमेंटम इनटू द वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास, लेकिन वो क्या हो गया, कैंसिल हो गया. तो हमें फिर क्या मिला कि हम काइनेटिक एनर्जी, हम सिस्टम के सेंटर ऑफ मास पे बैठ गए एंड नाउ वी आर सेइंग काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम कितना हो जाएगा. अब आप काइनेटिक एनर्जी टोटल की जब बात करोगे तो टोटल एनर्जी कितनी हो जाएगी कि सेंटर ऑफ मास से कितनी काइनेटिक एनर्जी दिख रही है सिस्टम की, सेंटर ऑफ मास से सिस्टम की काइनेटिक एनर्जी कितनी दिख रही है प्लस द काइनेटिक एनर्जी ऑफ सेंटर ऑफ मास. सो टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम जो आप ग्राउंड से ऑब्जर्व करोगे, टोटल काइनेटिक एनर्जी मतलब व्हेन यू आर ऑब्जर्विंग द सिस्टम फ्रॉम ग्राउंड. सो उस केस में आप क्या ले रहे हो, टोटल सब सारा वेलोसिटी का कंपोनेंट ले रहे हो, ऐसा नहीं कि सिर्फ सेंटर ऑफ मास के रेफरेंस फ्रेम में, नो, टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम, मतलब आप ग्राउंड पे बैठ गए एंड नाउ यू आर ऑब्जर्विंग, तो टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम विल बी काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास. सेंटर ऑफ मास से कितनी दिख रही है प्लस काइनेटिक एनर्जी ऑफ सेंटर ऑफ मास प्लस काइनेटिक एनर्जी ऑफ सेंटर ऑफ मास. एंड काइनेटिक एनर्जी ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या हो जाएगा, हाफ इनटू टोटल मास ऑफ द सिस्टम इनटू वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास का स्क्वायर. सो दिस इज द इक्वेशन व्हिच इज वेरी इंपॉर्टेंट. अब इस चीज में क्या है, इस इक्वेशन में एक इंपॉर्टेंट चीज है कि फॉर दिस टर्म योर फ्रेम इज डिसाइडेड. यहाँ पे आप कहाँ बैठ के देख रहे हो, यू आर सिटिंग ऑन द सेंटर ऑफ मास, यहाँ लिख लो, यू आर सिटिंग ऑन द सेंटर ऑफ मास एंड यू आर ऑब्जर्विंग द सिस्टम. So for this particular term, your frame of reference is fixed. यहाँ पे fixed frame of reference है कि आप center of mass पे बैठ के ही observe करोगे. This is the kinetic energy of system with respect to center of mass. Now this is frame independent. यहाँ पे लिख लो. Sorry, this is frame independent. क्यों? अगर आप नए फ्रेम पे जाओ, पहले हम कार पे बैठ गए, फिर हम हेलीकॉप्टर पे बैठ गए, फिर हम झूले पे बैठ गए, सो इज दिस टर्म गोइंग टू चेंज? नो, यहाँ पे तो फ्रेम आपका क्या है, सेंटर ऑफ मास. आपने एक सिस्टम पकड़ लिया एंड यू आर ऑब्जर्विंग दैट सिस्टम, सो फॉर दैट सिस्टम दिस टर्म इज फिक्स्ड कि आई हैव टू सिट ऑन द सेंटर ऑफ मास एंड ऑब्जर्व. सो इफ यू चेंज योर फ्रेम्स, आपका ये चेंज नहीं होगा क्योंकि फॉर दिस यू हैव टू सिट ऑन द सेंटर ऑफ मास. तो दिस इज फ्रेम इंडिपेंडेंट. लेकिन अब दिस इज फ्रेम डिपेंडेंट.
ये कैसा है? फ्रेम डिपेंडेंट। क्लियर है? अब काइनेटिक एनर्जी की जो वैल्यू है वो पॉजिटिव ही हो सकती है या जीरो हो सकती है। ये फ्रेम डिपेंडेंट क्यों है? क्योंकि ये है काइनेटिक एनर्जी ऑफ सेंटर ऑफ मास। तो सेंटर ऑफ मास की काइनेटिक एनर्जी आप अलग अलग जगह से देखोगे तो अलग अलग दिखेगी, क्योंकि सेंटर ऑफ मास की काइनेटिक एनर्जी तो आप कहीं भी बैठ के निकाल सकते हैं। यू कैन सिट ऑन द ग्राउंड, यहाँ पे आपका फ्रेम तो फिक्स नहीं है। अब यहाँ पे ग्राउंड पे बैठे तो उसको एक्चुअल काइनेटिक एनर्जी मिलेगी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। हेलीकॉप्टर पे बैठ गए तो कुछ और वेलोसिटी दिखेगी, कुछ और काइनेटिक एनर्जी दिखेगी। सो फॉर दिस फ्रेम इज फिक्स्ड, फॉर दिस फ्रेम इज नॉट फिक्स्ड। अगर आप ग्राउंड पे बैठे हो तो आपको एक्चुअल काइनेटिक एनर्जी दिखेगी, अगर आप किसी चलते हुए व्हीकल पे बैठे हो तो डिफरेंट दिखेगी। सो दिस इज फ्रेम डिपेंडेंट। बट अब हमें ये पता है कि काइनेटिक एनर्जी कैन बी ओनली पॉजिटिव और जीरो। इट कैन बी ओनली पॉजिटिव और जीरो। इट मींस मिनिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ पार्टिकल कैन बी जीरो, या तो पॉजिटिव या जीरो। सो मिनिमम क्या हो सकती है? जीरो हो सकती है। सो नाउ किस फ्रेम पे बैठोगे तो आपको काइनेटिक एनर्जी ऑफ सेंटर ऑफ मास जीरो दिखेगा? सोचो, किस फ्रेम पे बैठोगे तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ सेंटर ऑफ मास जीरो दिखेगा? दिस टर्म विल बी जीरो एट विच फ्रेम? सिंपल सी बात है, सेंटर ऑफ मास फ्रेम। आप सेंटर ऑफ मास फ्रेम पे बैठ जाओ और बोलो कि काइनेटिक एनर्जी कितनी है। तो सेंटर ऑफ मास फ्रेम पे जब आप बैठ जाओगे तो सेंटर ऑफ मास फ्रेम से सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी जीरो। जिस फ्रेम में आप बैठे हो वो फ्रेम आपका रेस्ट में आ जाता है। सो विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास, सीधी सी बात है ना। अब मैं तो बोलूंगी मैं रेस्ट में हूं इफ आई एम सेंटर ऑफ मास। इफ आई एम मूविंग विद सम वेलोसिटी आई विल से नो, आई एम नॉट मूविंग विद एनी वेलोसिटी, दीस थिंग्स आर मूविंग विद द वेलोसिटी ऑपोजिट टू माय वेलोसिटी। ठीक है, तो यहाँ पे वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास इज जीरो। सो अगर आप सेंटर ऑफ मास फ्रेम पे बैठ जाओ तो उस फ्रेम से दिस काइनेटिक एनर्जी इज गोइंग टू बी जीरो। क्लियर है ये चीज? क्योंकि काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास इज वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास माइनस वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास। वेरी सिंपल, इट इज जीरो। सो काइनेटिक एनर्जी ऑफ सेंटर ऑफ मास विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास फ्रेम इज गोइंग टू बी जीरो। इसका मतलब सेंटर ऑफ मास फ्रेम से ये जीरो हो गया। सेंटर ऑफ मास फ्रेम से काइनेटिक एनर्जी ऑफ सेंटर ऑफ मास इज मिनिमम, जीरो हो गई मतलब मिनिमम। इसका मतलब ये टर्म मिनिमम हो गया। जब ये मिनिमम हो गया तो ये तो किसी पे डिपेंड कर ही नहीं रहा है, तो ये मिनिमम हो गया। ठीक है, हमने फ्रेम चेंज किया, हम कार पे बैठे, हेलीकॉप्टर पे बैठे, कहीं झूले पे बैठे, पेड़ पे बैठे, सूरज पे बैठे, एंड वी ऑब्जर्व कि इसको हम कैसे मिनिमाइज कर सकते हैं, इस टर्म को हम कैसे मिनिमाइज कर सकते हैं। इज इट गोइंग टू चेंज इफ यू चेंज द फ्रेम्स? नो, we can change only this thing, and if we sit on the center of mass frame then it is going to be zero. It means minimum, it means this complete thing is minimum, it means this complete thing is minimum. ये पूरा kinetic energy total of the system is minimum now. So kinetic energy of the system minimum कब होगा? It will be minimum when you are sitting on the center of mass frame. तो आप लिख सकते हो कि center of mass frame is the frame of minimum kinetic energy. Center of mass frame is the frame of minimum kinetic energy. Center of mass frame minimum kinetic energy वाला फ्रेम है, क्योंकि वहां से जब आप सिस्टम को ऑब्जर्व करोगे your system will have minimum kinetic energy. क्लियर है? कब minimum kinetic energy होगी? When you are observing the system, that system from the center of mass of that system. क्लियर है ये चीज? इस चीज को हम आगे जब प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तो उसमें यूज करेंगे। कैसे? जैसे पहले क्या था, मान लो सिस्टम के पास कुछ काइनेटिक एनर्जी थी, सिस्टम के पास कुछ काइनेटिक एनर्जी थी, आप सेंटर ऑफ मास से ऑब्जर्व कर रहे थे एंड द सिस्टम हैड सम काइनेटिक एनर्जी। क्लियर है? कुछ काइनेटिक एनर्जी थी सिस्टम के पास। अब आपने क्या किया, थोड़ी देर बाद कुछ चेंजेस हुए सिस्टम में और सेंटर ऑफ मास के रिस्पेक्ट में काइनेटिक एनर्जी गायब हो गई। सेंटर ऑफ मास के रिस्पेक्ट में काइनेटिक एनर्जी कंप्लीटली जीरो हो गई। क्लियर है? तो वो काइनेटिक एनर्जी कहां जाएगी? इट मस्ट हैव बीन स्टोर्ड इन सम अदर energies like potential energy, spring potential energy और gravitational potential energy. तो इस चीज का हम यूज करने वाले हैं अभी। So now we are going to find out this term. इस टर्म को हम और थोड़ा सा रिड्यूस करेंगे, बिकॉज हमने क्या किया था, initially we had found out the velocities of the individual particle with respect to center of mass. So we are going to reduce that term now. So आपने लिखा हुआ है what is velocity of 1 with respect to center of mass, what is velocity of 2 with respect to center of mass. तो just replace that in that equation of kinetic energy and see कि आपको क्या मिल रहा है the term reduce होके। तो हमारे पास क्या आया था, kinetic energy of system with respect to center of mass is half m1 v1
c स्क्वायर प्लस हाफ m2 v2 c स्क्वायर। ठीक है, और हमारे पास आया था v1c इज इक्वल टू m2 इंटू v1 माइनस v2 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2, पलटा के देख लेंगे, एंड v2c वॉज माइनस m1 v1 माइनस v2 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2, यही आया था। क्लियर? नाउ जस्ट पुट दिस in this equation. So now what we are going to do, we are going to write v1 minus v2 is equal to v relative. ठीक है, v relative, और फिर ये तो v relative हो गया और इसका फिर मैग्नीट्यूड क्या आ जाएगा, v relative, और उसको हम सीधा लिखेंगे विदाउट अ वेक्टर साइन। क्लियर है? तो हमारे पास दोनों टर्म में क्या आ रहा है, we are having v1 minus v2. So basically you have two particles m1 and m2. Their velocities are v1 and v2, and now when you are finding out the velocity of one with respect to center of mass, velocity of two with respect to center of mass, you are getting v1 minus v2 in that equation. In that term you are getting v1 minus v2. So v1 minus v2 is basically what? v1 is velocity of 1, v2 is velocity of 2. So v1 minus v2 is the relative velocity of v1 and v2. ठीक है, you can say velocity of 1 with respect to 2 और velocity of 2 with respect to 1. ठीक है, basically here we are taking the magnitude, तो उतना मैटर नहीं करेगा कि आपने v2 minus v1 निकाला या v1 minus v2 निकाला. It is just the relative velocity of those two particles. एक अगर 5 से जा रहा है, दूसरा अगर 10 से जा रहा है, तो what is the relative velocity? Relative velocity is 5. ठीक है, तो like that here sign will not matter because finally eventually we are going to take the magnitude. So I am writing v1 minus v2 is equal to v relative. तो now आप अगले स्टेप में रिप्लेस कर लेना, but I am replacing here only. So this will be v relative and this will be v relative. So here we are writing vectors, इसलिए मैंने वेक्टर फॉर्म में लिखा है, but when you write here हम लोग वहां पे मैग्नीट्यूड लिख सकते हैं. So half m1 v1c स्क्वायर, तो यह आ जाएगा m2 v relative डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2 इस पूरे का स्क्वायर प्लस हाफ m2 इंटू, यहाँ पे अगेन माइनस विल नॉट मैटर, v रिलेटिव डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2 का स्क्वायर. सो नाउ इफ यू रिड्यूस दिस, व्हाट विल गेट? हाफ m1 m2 v रिलेटिव स्क्वायर डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2 स्क्वायर प्लस हाफ m2 m1 स्क्वायर v रिलेटिव स्क्वायर डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2 स्क्वायर. क्लियर है ये चीज? इतना आया. नाउ हियर वी हैव हाफ कॉमन, इसमें m1 है, m2 स्क्वायर है, इसमें m2 है, m1 स्क्वायर है. सो नाउ वी हैव m1 m2 इन बोथ दी टर्म्स. सो m1 m2 बाहर आ जाएगा, m1 m2 v रिलेटिव दोनों में कॉमन है, v रिलेटिव बाहर आ जाएगा. अंदर क्या बचा? m1 प्लस m2 स्क्वायर भी कॉमन है, m1 प्लस m2 स्क्वायर बाहर आ गया. तो यहाँ पे क्या बचा? m1 गया, m2 गया, तो एक m2 बचा यहाँ पे. एंड फ्रॉम हियर m2 इज गॉन, m1 इज गॉन, सो एक m1 बचा. सो नाउ व्हाट वी आर गेटिंग? दिस इज इक्वल्स टू हाफ m1 plus m2, m1 plus m2. So square and m1 plus m2 will get cancelled. So here we have m1 m2 by m1 plus m2 into v relative square. ठीक है? This is the total kinetic energy of the system with respect to center of mass. Not total. You can say the kinetic energy of the system with respect to center of mass. कितना आ रहा है? Half m1 plus m1 m2 divided by m1 plus m2 into v relative square. Clear? तो इसको हम बोलते हैं reduced mass of the system, and it is represented by mu. This is not coefficient of friction. This is not a refractive index. It is the m1 m2 by m1 plus m2. Here mu is the reduced mass of the system. If you have two particle system, reduced mass of the system is m1 m2 by m1 plus m2. ठीक है? और यहाँ पे हमारे पास काइनेटिक एनर्जी क्या आ जाएगी? काइनेटिक एनर्जी विल बी हाफ म्यू इंटू वी रिलेटिव स्क्वायर. हाफ म्यू इंटू वी रिलेटिव स्क्वायर. तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिस्टम विथ रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास क्या आ रहा है?
हाफ इंटू रिड्यूस मास इंटू v रिलेटिव। v रिलेटिव किसका? द टू पार्टिकल्स, उन दोनों पार्टिकल की जो रिलेटिव वेलोसिटी है v1 माइनस v2 और v2 माइनस v1, और उसका मैग्नीट्यूड लेकर के फिर हमें स्क्वायर करना है। सो काइनेटिक एनर्जी टोटल कितना आ जाएगा? टोटल ऑफ द सिस्टम इज काइनेटिक एनर्जी विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास प्लस काइनेटिक एनर्जी ऑफ सेंटर ऑफ मास, दिस इज हाफ म्यू v रिलेटिव स्क्वायर प्लस दिस इज half m total of the system into v of center of mass square. Also half, this can be written as m1 m2 by m1 plus m2 plus v relative square plus half, this is m1 plus m2 into v of center of mass square. So this is the total kinetic energy of the system. Total kinetic energy of the system. इस टर्म को याद रखेंगे, ये बहुत यूज भी होता है और इसको याद रखने में कोई दिक्कत भी नहीं है। हाफ म्यू इनटू वी रिलेटिव स्क्वायर, म्यू इज m1 m2 by m1 plus m2, दैट्स इट। सो हमारे पास आता है दिस इज द टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास प्लस वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास। म्यू इज m1 m2 by m1 plus m2 and the kinetic energy with respect to center of mass is half m1 m2 by m1 plus m2 into v relative square. v relative is v1 minus v2 or v2 minus v1, where v1 is the velocity of first object, v2 is the velocity of second object. तो दोनों ऑब्जेक्ट की रिलेटिव वेलोसिटी लेंगे, उसके बाद फिर रिड्यूस मास निकालेंगे m1 m2 by m1 plus m2 and you will get kinetic energy with respect to center of mass is equal to half mu v relative square. I hope it's clear to you. इसको इस इक्वेशन का काफी यूज होने वाला है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स में आप यू एक ही लाइन में आंसर ले आएंगे, जो आपने पिछले केस में काइनेटिक एनर्जी का कंजर्वेशन, मैकेनिकल एनर्जी का कंजर्वेशन प्लस मोमेंटम का कंजर्वेशन करके दो इक्वेशन बना के उनको सॉल्व करके आपने लाया था, वो आप इसमें एक ही इक्वेशन में एक ही लाइन में आप उस आंसर को लेके आ पाएंगे। तो वी विल सॉल्व सम प्रॉब्लम्स ऑन दिस। So let's solve some problems on this case. So here we have a mass of 3 kg and which is moving with velocity 8 meter per second and another mass of 6 kg which is moving with 10 meter per second. Now in this case what is going to happen? So because this is moving faster, this is moving slower, so extension is going to happen and we have to find out what will be the maximum extension. Similarly, I am taking here 6 kg which is moving with same 10 meter per second and this is moving with 8 meter per second. Again in this case, this is slow, this is fast, this is slow, so compression will happen. So what will be the maximum compression? Now tell me, compression will be same or different? K is equal to 100 Newton per meter for both the blocks, both the springs. So will it be same or different? So अगर थोड़ा सा हमें एनर्जी कंजर्वेशन वाला फील आ रहा है तो यहाँ पे क्या होना चाहिए? सेम, बिकॉज सिचुएशन इज सेम। 3 8 से जा रहा है, 6 10 से जा रहा है, 3 8 से जा रहा है, 6 10 से जा रहा है, स्प्रिंग सेम है, तो यहाँ पे क्या होना चाहिए? बस डिफरेंस ये होगा, इसमें एक्सटेंशन आएगा, इसमें कंप्रेशन आएगा, बट इट विल बी सेम। तो हम लोग देख लेते हैं सेम आ भी रहा है या नहीं आ रहा है। सो फर्स्ट व्हेन वी यूज्ड टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम्स विद द कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, हम क्या करते थे? जो मैक्सिमम कंप्रेशन और मैक्सिमम एक्सटेंशन है दैट विल हैपन व्हेन बोथ द ब्लॉक्स हैव सेम वेलोसिटी। तो हमने मान लिया कि फाइनली दीस टू आर गोइंग विद same velocity, some v, so what we'll do? m1 v1 plus m2 v2 is equal to final total mass into v. So here we'll have 3 into 8 plus 6 into 10 is equal to 3 plus 6 9 into v. Similarly here 6 into 10 plus 3 into 8 is equal to 9 into v. So basically from here we'll get v is equal to 24 60 84 by 9, 84 by 9, v is equal to 84 by 9. So when the blocks are moving with this much velocity, they have the maximum extension, maximum compression. Now फिर हम क्या करते थे? जो भी initial kinetic energy है of the blocks, final kinetic energy है of the system, तो हमने क्या किया? हमने देखा कि whatever is the loss in kinetic energy, that will be the gain in potential energy of the spring. That will be gain in potential energy of the spring. तो जो भी पोटेंशियल एनर्जी आएगी दैट विल बी हाफ k into x max square, क्योंकि दिस इज द सिचुएशन वेयर द मैक्सिमम एक्सटेंशन इज हैपनिंग और मैक्सिमम डिफॉर्मेशन इज हैपनिंग। तो फिर हमने क्या किया? इसको वहां पे पुट किया एंड वी फाउंड आउट द मैक्सिमम एक्सटेंशन इन द स्प्रिंग। नाउ यूजिंग सेंटर ऑफ मास हाउ वी कैन डू? तो पढ़िए काइनेटिक जो मिनिमम काइनेटिक एनर्जी वाला फ्रेम है दैट इज सेंटर ऑफ मास फ्रेम। तो सेंटर ऑफ मास पे हम बैठ गए एंड नाउ वी आर ऑब्जर्विंग द सिस्टम, हम सिस्टम को ऑब्जर्व कर रहे हैं। तो इनिशियली सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी क्या है? वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास। जैसे अभी व्हेन आई एम एक्सप्लेनिंग इट विल टेक टाइम टू एक्सप्लेन, क्योंकि क्वेश्चन को समझ में आना चाहिए, कैसे प्रोसेस करना है समझ में आना चाहिए। व्हेन वी रीच टू द
फाइनल इक्वेशन की फटाक से हमें जैसे इक्वेशन दिखा हमें ये इक्वेशन लगाना है, दैट्स इट। तो वो इजी होगा, बट अभी समझाने के लिए आई विल टेल दी प्रोसेस की और भी चीजें क्या हो रही है, कैसे हो रहा है, तो इट विल टेक टाइम, बट जब आप क्वेश्चन करोगे ये एक लाइन में आ जाएगा। तो अभी यहाँ पे वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या है, m1v1 प्लस m2v2 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2, कितना है ये, इट इज 84/9, ठीक है। वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास इज m1v1 प्लस m2v2 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2। तो सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी इतनी है, तो ये तो कुछ क्या होगा 9 पॉइंट समथिंग है, इसकी वेलोसिटी है 8, इसकी वेलोसिटी है 10, सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी है 9 पॉइंट समथिंग। इट मींस विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास 3 kg is also moving and this is also moving, 6 kg is also moving, both the blocks are moving with respect to center of mass। इसका मतलब सेंटर ऑफ मास से उसको सिस्टम की, हम जो सेंटर ऑफ मास पे बैठ गए या सेंटर ऑफ मास को सिस्टम की कुछ ना कुछ काइनेटिक एनर्जी दिखाई दे रही है, ठीक है। अब यहाँ पे अगर वो काइनेटिक एनर्जी, इफ दैट काइनेटिक एनर्जी बिकम्स 0, तो काइनेटिक एनर्जी कहाँ जाएगी, सिस्टम में थी, सिस्टम में ही रहेगी, कहाँ जाएगी, इट विल गो इनटू दी दिस, ठीक है। अब और एक चीज क्या है कि यहाँ पे व्हेन वी आर सेइंग दैट देयर इज नेट फोर्स ऑन द सिस्टम is equal to 0, this is equals to 0, net force on the system is 0। हमारे पास जो इक्वेशन आया था काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिस्टम टोटल इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिस्टम विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास प्लस काइनेटिक एनर्जी ऑफ सेंटर ऑफ मास। नाउ आई एम सेइंग कि F net on the system is 0, F net on the system is 0, इसका मतलब A of center of mass is equal to 0, इसका मतलब B of center of mass is unchanged, ठीक है। V of center of mass is unchanged, इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी ऑफ सेंटर ऑफ मास इज अनचेंज्ड, ठीक है। व्हाटएवर इज हैपनिंग इन द सिस्टम, कंप्रेस हो रहा है, स्ट्रेच हो रहा है, ब्लॉक ऊपर जा रहा है, नीचे आ रहा है, डिफरेंट सिस्टम्स में, बट इफ दिस इज द कंडीशन काइनेटिक एनर्जी ऑफ सेंटर ऑफ मास इज नॉट गोइंग टू चेंज, सो दिस इज नॉट गोइंग टू चेंज। तो अब यहाँ पे जो है काइनेटिक एनर्जी ऑफ सेंटर ऑफ मास पहले भी उतना ही था, अभी भी उतना ही है, तो आई कैन से कि भाई काइनेटिक एनर्जी जो टोटल है, तो हमने लिख लिया ये है इनिशियल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम, दिस इज इनिशियल काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिस्टम विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास एंड दिस इज इनिशियल काइनेटिक एनर्जी ऑफ सेंटर ऑफ मास, दिस इज द इनिशियल कंडीशन। फाइनल कंडीशन इज काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिस्टम टोटल, काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिस्टम विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास फाइनल, काइनेटिक एनर्जी ऑफ सेंटर ऑफ मास फाइनल। तो अब यहाँ पे मैं आई एम ट्राइंग टू से कि जो काइनेटिक एनर्जी या फिर जो पार्ट ऑफ एनर्जी, सिस्टम के पास कुछ एनर्जी है, सम पार्ट ऑफ एनर्जी कैन बी कन्वर्टेड, सम पार्ट ऑफ काइनेटिक एनर्जी कैन बी कन्वर्टेड इनटू पोटेंशियल एनर्जी। जैसे यहाँ पे है कि स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी, कोई अगर वेज के ऊपर कोई ब्लॉक जा रहा है, इन दैट केस इट विल कन्वर्ट इनटू पोटेंशियल एनर्जी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। तो यहाँ पे जो पार्ट विच कैन बी कन्वर्टेड, विच पार्ट ऑफ काइनेटिक एनर्जी कैन बी कन्वर्टेड इनटू पोटेंशियल एनर्जी, only this part with respect to center of mass वाला part, because center of mass की काइनेटिक एनर्जी तो चेंज ही नहीं होने वाली है, तो इसलिए हमने क्या किया, भाई हमें पता है कि नेट फोर्स ऑन द सिस्टम 0 है, ठीक है भाई, एक्सेलरेशन ऑफ द सिस्टम इज 0 है, सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी चेंज नहीं होने वाली है, सेंटर ऑफ मास की काइनेटिक एनर्जी चेंज नहीं होने वाली, इसलिए हम जाके सेंटर ऑफ मास पे बैठ गए कि नाउ वी विल ऑब्जर्व फ्रॉम सेंटर ऑफ मास एंड वी नो कि दिस पार्ट ऑफ जो काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम है दैट कैन बी कन्वर्टेड इनटू दी सम डिफरेंट एनर्जी, ठीक है, जैसे यहाँ पे स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी। तो नाउ आई एम सेइंग कि आई एम सिटिंग ऑन द सेंटर ऑफ मास, आई एम ऑब्जर्विंग द सिस्टम, नाउ आई एम सेइंग कि व्हेन द मैक्सिमम कंप्रेशन विल ऑकर or when the maximum extension will occur or when the block will reach to the maximum height, है ना, or what maximum height it will go, है ना, up to what maximum height it will go। तो हमें क्या देखना चाहिए कि this part is not going to change, this part is not going to change। अगर ये सारा का सारा the kinetic energy of system with respect to center of mass, अगर ये सारा का सारा खत्म होके पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाए, यहाँ पे स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी, उस केस में ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, अगर ये सारा का सारा उसमें कन्वर्ट हो जाए तो वी विल हैव मैक्सिमम हाइट ऑफ द ब्लॉक, वी विल हैव मैक्सिमम एक्सटेंशन, वी विल हैव मैक्सिमम कंप्रेशन। सो बेसिकली व्हाट आई एम ट्राइंग टू से कि अगर जो काइनेटिक एनर्जी विथ रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास है, इफ इट इज फाइनली 0, देन आपकी जो भी पोटेंशियल एनर्जी है आप उसको इक्वेट कर सकते हो कि इनिशियली व्हाटएवर इज द काइनेटिक एनर्जी विथ रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास is the potential energy in the system now, सीधी सी बात।
और ये हम कैसे निकाल सकते हैं, हाफ म्यू वी रिलेटिव स्क्वायर। सो बेसिकली मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं है, आई विल जस्ट गो एंड सिट ऑन द सेंटर ऑफ मास, आई विल ऑब्जर्व व्हाट इज द एनर्जी ऑफ द सिस्टम, काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम विथ रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास, whatever is the kinetic energy of system with respect to center of mass, I will equate it to the potential energy that is going to be get stored in the system। जो कि यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे क्या होगा, finally potential energy in the system will be half k x max square। So this is the potential energy of the system। कहाँ से आएगी, ये आएगी kinetic energy of system with respect to center of mass से आएगी। क्या ये kinetic energy of center of mass से आ सकती है, नहीं, ये तो चेंज होने वाला ही नहीं है ना, because we have net force equals to 0। So whenever we have this condition v of center of mass unchanged, kinetic energy of center of mass unchanged, तो हम क्या करेंगे, center of mass पे जाके बैठेंगे, हम देखेंगे सिस्टम के पास with respect to center of mass what is the kinetic energy and we'll equate it to the maximum potential energy that is going to be stored in the system। So simply my equation will be, यहाँ पे जैसे आ रहा है 84/9 वेलोसिटी आ रही है सेंटर ऑफ मास की, दिस इज 84/9, इसको भी बताते हैं और इसके बारे में। सो नाउ व्हाट आई कैन राइट, टोटल काइनेटिक एनर्जी या फिर जस्ट काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिस्टम विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास इज इक्वल टू फाइनल पोटेंशियल एनर्जी इन द सिस्टम, दैट इज हाफ m v max x max square, half k x max square। Potential energy of the system will be half k x max square and this will be the maximum। कब maximum होगी, जब सारी की सारी ये एनर्जी, ये तो जा नहीं सकती, completely this part of the kinetic energy of the system has become zero and it has stored as a potential energy। अगर ये थोड़ी बहुत रहेगी, इसका मतलब थोड़ी बहुत काइनेटिक एनर्जी है सिस्टम में और थोड़ी बहुत पोटेंशियल एनर्जी है सिस्टम में, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी सिस्टम में होगी, डेफिनेटली होगी, बट वी नो कि सम पार्ट ऑफ काइनेटिक एनर्जी व्हिच इज इक्वल्स टू दिस, टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम ये है, उसको हम वी कैन रिप्रेजेंट इट एज काइनेटिक एनर्जी विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास प्लस काइनेटिक एनर्जी ऑफ सेंटर ऑफ मास। सो दिस पार्ट ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ दिस सिस्टम कैन नॉट बी चेंज्ड, ओनली दिस कैन बी चेंज्ड। तो अगर इसको हमने कंप्लीटली जीरो कर दिया, then the system will have maximum potential energy, the system will have maximum potential energy। और maximum extension मतलब maximum potential energy, maximum compression मतलब maximum potential energy, maximum height gain मतलब maximum potential energy। तो ये सारा जीरो करना है, ये चेंज नहीं होगा, ये जीरो करना है और इक्वल करना है maximum potential energy that is going to be stored in the system। So this is equals to half mu into v relative square। अब can you find out the mu? Yes. Can you find out v relative? Yes. So now we have half k is 100 into x max square is equal to half m1 m2 by m1 plus m2, 3 into 6 divided by 3 plus 6 that is 9 into v relative। So इसका 10 है, इसका 8 है, what is v relative? It is 2, 10 minus 8 or 8 minus 10 doesn't matter। So ये आ गया 2, 2 का square 4। So now we have 4 is equal to 100 by 2 into x max square is equal to 4। So here we have 8। इसको एक काम करो 200 ले लो, we will have a better result। So ये 4 और ये 100। So x max is equal to 2 by 10 that is 0.2 meter or 20 centimeter। So what will be the maximum extension in the spring? Maximum extension will be 20 centimeter। Now here what we have done, we have taken the case reverse। तो यहाँ पे maximum compression होगा। So इसमें भी again velocity of the kinetic energy of system with respect to center of mass क्या आएगा, वही आएगा, v relative is again 2, mu is again same 6 into 3 by 6 plus 3। So definitely this is going to be same, कि वहाँ पे भी 200 लेना है, you are going to get the same value, x is equal to 20 centimeter, same compression, यहाँ पे extension वहाँ पे compression। So basically in both the system what we have kinetic energy with respect to center of mass same for both the system। तो फिर maximum extension भी same ही होगा because spring same है। तो इस तरीके से हम क्वेश्चंस कर सकते हैं। नाउ इसमें ऑब्जर्व करने वाली क्या बात है, इसमें यह है कि हम सेंटर ऑफ मास पे बैठे, ठीक है, सेंटर ऑफ मास पे बैठे एंड व्हेन वी वर सॉल्विंग विद द प्रीवियस वे ऑफ सॉल्यूशन, हमको क्या मिला कि भाई सिस्टम शुड मूव विद दिस मच वेलोसिटी,
है ना सिस्टम, आई मीन बोथ द ब्लॉक्स विल मूव विद सेम वेलोसिटी। कैसे करते थे, कंजर्व करते थे मोमेंटम वेयर वी यूज्ड टू टेक दैट बोथ द ब्लॉक्स आर गोइंग टू मूव विद सेम वेलोसिटी एट द मैक्सिमम कंप्रेशन और मैक्सिमम एक्सटेंशन। और वहां से वेलोसिटी क्या आई, वहां से हमारे पास वेलोसिटी आई 84/9। व्हाट इज दिस वेलोसिटी, दिस इज द वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास। ये दोनों तो सेम ही है, दिस इज द वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास। इसका मतलब ये भी v से जा रहा है, ये भी v से जा रहा है और सेंटर ऑफ मास भी v से जा रहा है। सीधी सी बात है, इफ ऑल द masses of the system are moving with v, center of mass is going to move with v। अब now with respect to center of mass, मैं center of mass मतलब मैं भी v से जा रही हूँ, that is also going with v। what is the relative velocity of that object with respect to me, 0। what is relative velocity of this object with respect to me, 0। so अब मुझे क्या लग रहा है कि at this instant, this particular instant, ये जो maximum compression या extension हो रहा है एक मोमेंट के लिए हो रहा है बस। जैसे कल बताया था कि पहले क्या होगा, कंप्रेस होगा, ठीक है, मैक्सिमम कंप्रेशन आएगा और धीरे धीरे मैक्सिमम कंप्रेशन विल स्टार्ट डिक्रीजिंग। सो दिस इज हैपनिंग एट जस्ट अ सिंगल मोमेंट, छोटे से मोमेंट के लिए हो रहा है। तो एट दैट मोमेंट मुझे क्या लगेगा कि ये भी मेरे रिस्पेक्ट में रेस्ट में है, ये भी मेरे रिस्पेक्ट में रेस्ट में है, एंड व्हाटएवर एनर्जी वाज देयर इन सिस्टम विद रिस्पेक्ट टू मी, विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास, पूरी की पूरी स्प्रिंग में स्टोर हो गई है। So this is also at rest with respect to me, क्योंकि मैं भी v से, ये भी v से, ये भी v से। So all those both the blocks are with respect to me, they are having zero velocity, and whatever was the energy that those two blocks were having is stored in the potential energy of the spring। So I hope आपको clear है ये। तो यहाँ पे simply हमें क्या लगाना है, this is the final equation। जैसे ही आपको एक क्वेश्चन मिला क्या करेंगे, half kx max square is equal to half म्यू इंटू वी रिलेटिव स्क्वायर, बस हो गया सॉल्व प्रॉब्लम। और एक तरीका क्या था, इसी को, ये तो मैंने फाइनल इक्वेशन दे दिया। बेसिकली क्या कर रहे थे, अगर हम कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगाएं तो इस सिस्टम के लिए हम क्या लिखेंगे कि इनिशियली काइनेटिक एनर्जी ऑफ बोथ द ब्लॉक्स विथ रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास प्लस काइनेटिक एनर्जी ऑफ सेंटर ऑफ मास, ठीक है। दिस इज दी, हम लोग क्या करते हैं, डेल्टा के ई, है ना, काइनेटिक एनर्जी में जो भी लॉस आया, पहले जो किया था, काइनेटिक एनर्जी में जो भी लॉस आया इक्वल्स टू गेन इन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द स्प्रिंग। तो काइनेटिक एनर्जी इनिशियल ये हो गया, इनिशियल लिख लो, ठीक है, प्लस माइनस काइनेटिक एनर्जी ऑफ ब्लॉक्स विथ रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास फाइनल प्लस काइनेटिक एनर्जी ऑफ सेंटर ऑफ मास। दिस इज द लॉस। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम इज with respect to center of mass plus center of mass, with respect to center of mass plus center of mass, this is initial, this is final, is equal to half k x max square। so यहाँ पे what I am doing, I am applying the conservation of energy। अब मुझे ये पता है, अगर मैंने यहाँ initial यहाँ final लिखा होता तो मुझे पता है कि this is going to remain same, तो ये क्या आ जाएगा, this is going to be 0, मतलब ये दोनों मिलके क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे, सीधी सी बात है। तो यहाँ से हमारे पास क्या जाएगा, kinetic energy of blocks with respect to center of mass initial, kinetic energy of block with respect to center of mass final, which is going to be 0, क्योंकि finally एक ब्लॉक V से, दूसरा ब्लॉक भी V से, center of mass भी V से। so with respect to me at that instant, जिस instant पे maximum compression is happening, at that instant मुझे लग रहा है कि those two blocks are at rest with respect to me। it means they doesn't have any velocity, it means they don't have any kinetic energy, so this term will become 0। so finally what I'll get, kinetic energy of system with respect to center of mass initially is equal to half k x max square। ये समझ में आ गया ना, ये दोनों क्या है, these two are same, so this minus this 0, और ये तो वैसे भी 0 होना है क्योंकि फाइनली सेंटर ऑफ मास के रिस्पेक्ट में जो भी काइनेटिक एनर्जी थी वो 0 हो गई एंड सारी की सारी किस में चली गई, पोटेंशियल एनर्जी में चली गई। अब इस पे डिफरेंट आपको मासेस ऑफ ब्लॉक्स दे दिया जाएगा एंड दे आस्क यू टू फाइंड आउट दी मैक्सिमम कंप्रेशन और मैक्सिमम एक्सटेंशन। तो सिंपली क्या करना है, जो भी काइनेटिक एनर्जी थी विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास कहां चली गई, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ दी स्प्रिंग में चली गई। नाउ अगेन आई गिव अनदर क्वेश्चन। सो हियर वी हैव 1 kg ब्लॉक व्हिच इज एट रेस्ट इनिशियली, u इज इक्वल टू 0, और ये अपनी बढ़िया नेचुरल लेंथ में है, और ये है 2 kg। इट इज मूविंग विद 10 मीटर पर सेकेंड। k इज इक्वल टू ले लो 100 न्यूटन पर मीटर, नहीं 200/3 न्यूटन पर मीटर, ठीक है। अब इसमें फाइंड आउट करना है व्हाट इज दी, बताओ क्या होगा, मैक्सिमम एक्सटेंशन या कंप्रेशन। सो इन दिस केस अगेन इट इज गोइंग टू बी एक्सटेंशन। सो व्हाट विल बी द मैक्सिमम एक्सटेंशन इन द
spring. So simply we can find out what is V relative here. So here we can write half mu is m1 m2 by m1 plus m2, m1 m2 by m1 plus m2 into V relative. V relative is 10 minus 0. It is 10 square. So half mu V relative square is equal to half k x max square. सिंपली ये लगाना है. पहले क्या करना पड़ता था, m1 v1 plus m2 v2 is equal to m1 plus m2 into v, and then kinetic energy आपको loss in kinetic energy is equal to gain in potential energy. Now we don't have to do that. So यहाँ से 2 by 3 is gone, half is gone, so we have 100 is gone. So here we have x max square is equal to 1, so x max is equal to 1 meter. So the maximum extension in the spring will be 1 meter. Now another question is, we have a wedge like this on which a block of mass 2 kg is moving with speed 20 meter per second. It is moving with 20 meter per second. All the surfaces are smooth everywhere. Here also all the surfaces are smooth. Then we have to find out here what will be the maximum height attained by the block. What will be the maximum height attained by the block? इसको ले लो 8 kg. ठीक है, what will be the maximum height attained by the block. अब this problem I had not done in the conservation of linear momentum case, तो उससे भी कर लेते हैं और फिर इससे भी कर लेते हैं. तो यहाँ पे पहली चीज ये इधर जा रहा है slowly. अब धीरे से यहाँ पे क्या मिलेगा उसको, because initially this is at rest. धीरे धीरे इधर जाएगा, धीरे धीरे इधर जाएगा. अब यहाँ पे जब ये आएगा, it will apply a normal force on this block. इस पे इधर नॉर्मल लगाएगा और ये वेज इस पे इधर नॉर्मल लगाएगा. इसका कंपोनेंट इधर होगा. ऑन दी ब्लॉक नॉर्मल विल बी एक्टिंग इन दिस डायरेक्शन, सो इट्स वेलोसिटी विल डिक्रीज. ऑन दिस ब्लॉक, ऑन दिस वेज, कंपोनेंट ऑफ नॉर्मल विल बी लाइक दिस, सो इट्स वेलोसिटी इज गोइंग टू इंक्रीज. जैसा स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम में होता था, सेम इज द केस. इसकी वेलोसिटी धीरे धीरे डिक्रीज हो रही है, इसकी वेलोसिटी धीरे धीरे इंक्रीज हो रही है. अब यहाँ पे क्या होगा, जब तक वेलोसिटी ऑफ block is greater than velocity of wedge, जब तक velocity of block is greater than velocity of wedge, क्या होगा, ये उस पे नॉर्मल फोर्स लगाता रहेगा, पुश करता रहेगा, सो उसको नॉर्मल रिएक्शन मिलता रहेगा. सो इट्स वेलोसिटी विल कीप ऑन डिक्रीजिंग, इट्स वेलोसिटी विल कीप ऑन इंक्रीजिंग, है ना. वेज की वेलोसिटी इंक्रीज होगी, ब्लॉक की वेलोसिटी डिक्रीज होगी. एंड जब तक इस पे नॉर्मल फोर्स लग रहा है, इस पे यहाँ पे नॉर्मल लग रहा है ऊपर, ठीक है, इस पे ऊपर क्या लग रहा है, नॉर्मल लग रहा है, नॉर्मल का एक कंपोनेंट ऊपर आ रहा है. धीरे धीरे इट विल गो, मतलब क्या करेगा, थोड़ी सी हाइट ही अटेन करता रहेगा. क्लियर है, थोड़ी हाइट ही अटेन करता रहेगा. एट सर्टेन मोमेंट व्हेन नॉर्मल इज जीरो, नॉर्मल जीरो कब होगा, व्हेन वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ वेज. सेम सिचुएशन, जब वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक, जो कि अगेन एक इंस्टेंट के लिए होगा, एक इंस्टेंट के लिए वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ वेज हो जाएगा. और उस केस में उन दोनों के बीच नॉर्मल नहीं लगेगा, उन दोनों के बीच नॉर्मल नहीं लगेगा. दोनों सेम वेलोसिटी से चल रहे होंगे, दोनों सेम वेलोसिटी से चल रहे होंगे. उस केस में ना इस पे नॉर्मल लगेगा, ना इस पे नॉर्मल लगेगा, दोनों पे नॉर्मल नहीं लगेगा. आफ्टर दैट, अब जब यहाँ पे मान लो इस हाइट पे पहुंच गया, इन दोनों के बीच में नॉर्मल नहीं है. सो व्हाट फोर्स इज देयर ऑन दिस ब्लॉक, ओनली mg. इस ब्लॉक पे क्या है, सिर्फ mg. मान लो इस हाइट पे पहुंचा और यहाँ पे इन दोनों की वेलोसिटी सेम हो गई, दोनों सेम वेलोसिटी से जा रहे हैं, तो इसके पास क्या होगा, ओनली mg विल बी एक्टिंग डाउनवर्ड. तो जैसे ही नॉर्मल जीरो हुआ, तो क्या होने लगेगा, इट विल हैव अ फोर्स इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, वो नीचे आने लगेगा. तो मैक्सिमम हाइट वाला इंस्टेंट कौन सा हुआ, जब इन दोनों के बीच नॉर्मल नहीं लग रहा है, मतलब दोनों सेम वेलोसिटी से जा रहे हैं. सेम वेलोसिटी से जाएंगे तो नॉर्मल क्या रहेगा, जीरो रहेगा. बढ़िया, दोनों आराम से जा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कोई लड़ाई नहीं है, कोई झगड़ा नहीं है. So when both have same velocity, the complete system is moving with same velocity. At that moment, this is going to have the maximum height. This is going to have the maximum height. तो हम उस केस में क्या करते हैं, m1 v1 2 into 20 plus 8 into 0 is equal to 10 into, है ना, total mass m1 plus m2 into v final. तो यहाँ से क्या आ जाएगा हमारे पास, v is equal to 4 meter per second. जब दोनों 4 मीटर पर सेकेंड से जा रहे होंगे, इट विल बी एट मैक्सिमम हाइट. अब लॉस इन काइनेटिक एनर्जी, सो हाफ m v स्क्वायर, ठीक है, प्लस इसके पास तो कोई एनर्जी नहीं है, तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी माइनस फाइनल काइनेटिक एनर्जी, हाफ m1 plus m2 that is 10 into v square. इनिशियली क्या था, 2 kg was moving with 20 मीटर पर सेकेंड.
2 kg was moving with 20 meter per second, and finally 8 plus 2 10 kg is moving with 4 meter per second. So this is the loss in kinetic energy. ये गया 400 minus 80, कितना आ गया? 320 आ गया. So loss in kinetic energy delta Ke is 320. तो 320 is equal to, अब ये जो loss in kinetic energy है वो कहाँ gain हुआ होगा? Potential energy of the block. So m which is 2, g is 10, h. So यहाँ से हमारे पास क्या आ गया? h is equal to 16 मीटर. h is equal to 16 मीटर. तो 16 मीटर की हाइट तक वो जाएगा. एंड डेफिनेटली यहाँ पे हम कंसीडर कर रहे हैं कि इसकी हाइट बहुत ज्यादा है ना, 16 मीटर से भी ज्यादा है. तो कितनी हाइट तक जाएगा? 16 मीटर की हाइट तक दिस ब्लॉक विल गो अप. अब इसी को अगर हमें सॉल्व करना है सेंटर ऑफ मास के कंसेप्ट से, सेंटर ऑफ मास फ्रेम से, तो हम क्या बोलेंगे कि फाइनली इनिशियली क्या निकाल लो? वेलोसिटी, काइनेटिक एनर्जी विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास. काइनेटिक एनर्जी विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास जो भी होगी, अगेन यहाँ पे जब फोर्स लग रहा है, केस पे नॉर्मल, केस पे नॉर्मल, इंटरनल फोर्स, यहाँ से तो कोई फोर्स नहीं लग रहा है. सो एक्स डायरेक्शन में द नेट फोर्स इज 0, वी कैन कंजर्व द मोमेंटम. तो कंजर्व द मोमेंटम, या फिर वी कैन से एक्स डायरेक्शन में नेट फोर्स 0 है. सो वी कैन से काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सेंटर ऑफ मास इज नॉट गोइंग टू चेंज. सो व्हाटएवर इज द काइनेटिक एनर्जी विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास, इफ इट इज कंप्लीटली 0, देन दैट विल कन्वर्ट इनटू potential energy of the block. So what kinetic energy we have with respect to center of mass? Half mu is 2 into 8 by 10 into v square, 20 into 20 is equal to, this is half mu v relative square, इसकी 20 है, इसकी कुछ नहीं है, is equal to m into g into h. अब यहाँ से हमारे पास क्या आया? 2 से ये गया, 10 से ये गया, 2 से फिर ये गया, 10 से ये गया, एंड नाउ वी गॉट h इज इक्वल टू 16 मीटर. बस एक ही लाइन में आ गया आंसर, h इज इक्वल टू 16 मीटर. कितनी हाइट तक जाएगा? h इज इक्वल टू 16 मीटर की हाइट तक जाएगा ब्लॉक. क्लियर ये चीज? अब इसी में थोड़ा सा और एक दो क्वेश्चन कर लेते हैं. सो आपके पास एक ऐसा हेमिस्फेरिकल टाइप का शेप वाला वेज है, on which यहाँ पे एक ब्लॉक है ऑफ मास, दिस इज 1 kg एंड दिस इज ऑल्सो 1 kg. ठीक है, इट इज मूविंग विथ 4 मीटर पर सेकेंड. इसको हमने एट द बॉटम मोस्ट पॉइंट वी आर प्रोवाइडिंग दिस ब्लॉक स्पीड ऑफ 4 मीटर पर सेकेंड. फिर से इसमें फाइंड आउट करना है, ये सब स्मूथ है, हमें फाइंड आउट करना है व्हाट विल बी द मैक्सिमम हाइट अटेन्ड बाय दिस ब्लॉक. फिर से क्या करेंगे? हाफ म्यू 1 into 1 by 1 plus 1, 1 into 1 by 1 plus 1 into 4 v relative square. So 4 into 4 कितना आ गया? is equal to mgh. तो अब पोटेंशियल एनर्जी तो बस ये गेन करने वाला है ना, m into g into h. कितना आएगा यहाँ से? ये 4 गया. So now we will have h is equal to 4 by 10, 0.4 मीटर, और you can say 40 सेंटीमीटर, है ना, 40 सेंटीमीटर. Similarly, take that this is moving with 1 meter per second and this is moving with 2 meter per second. In that case, what will be the maximum height attained by this block? तो फिर से क्या करेंगे? Simply center of mass की काइनेटिक एनर्जी चेंज नहीं होने वाली है. सेंटर ऑफ मास की रिस्पेक्ट में फाइनली क्या होने वाला है? एट दैट इंस्टेंट, है ना. फाइनली का मतलब बिल्कुल ये नहीं समझना है कि उसके बाद वो वैसे ही चलता रहेगा. नो, द इंस्टेंट विच वी आर फोकस्ड ऑन, जिस इंस्टेंट के बारे में हम बात करना चाहते हैं, एट दैट इंस्टेंट इट इज गोइंग टू मूव विद द वेलोसिटी इक्वल्स टू इट्स वेलोसिटी इक्वल्स टू वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास. उस इंस्टेंट पे वेलोसिटी, ये दोनों की दोनों, दिस प्लस दिस, दोनों की दोनों सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी से चलेंगे, तभी तो सेंटर ऑफ मास विल फील दैट दीज ऑब्जेक्ट्स आर हैविंग जीरो वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू मी. इट मींस जीरो काइनेटिक एनर्जी विद रिस्पेक्ट टू मी. इट मींस complete kinetic energy which these two blocks were having initially has converted into potential energy in my system. And in my system, potential energy is gained by this block. In this system, potential energy is gained by this block. We can equate whatever kinetic energy was there with respect to center of mass with the potential energy of this block, and from there we will be able to find out the maximum height attained by this block. Maximum height. Why I am saying maximum height? Because maximum part of the energy which can be converted into potential energy is the only energy which is with respect to center of mass. And now we have equated that to 0. It means सारी की सारी कहाँ गई? सारी की सारी पोटेंशियल एनर्जी में चली गई. वो मैक्सिमम एनर्जी है, उससे ज्यादा कहाँ से आएगी एनर्जी? सेंटर ऑफ मास अपनी एनर्जी दे नहीं सकता.
तो इसके पास मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी उतनी ही हो सकती है जितनी काइनेटिक एनर्जी विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास है। तो हमने सारी की सारी इसको दे दी और हमें मैक्सिमम हाइट पता चल गई। तो यहां से हमारे पास क्या आएगा, हाफ m1 m2 by m1 plus m2 into v relative square 2 minus 1 square is equal to m into g into h। तो यहां से हमारे पास क्या आ गया, h is equal to 1 by 40, h is equal to 1 by 40, yes। so this will be the maximum height attained by the block। तो इस टाइप के क्वेश्चंस आपको आएंगे, इजी है ना। यहाँ पे हमें एक ही लाइन में करना है, तो कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम से भी कर सकते हैं, इससे भी कर सकते हैं। तो सेंटर ऑफ मास का फ्रेम लेकर के जहां पे हमारे पास इजी होगा सॉल्व करना, विल यूज दैट एंड विल सॉल्व विद दैट। ठीक है, तो बढ़िया से पढ़ाई करते रहेंगे। जो भी इसमें समझ नहीं आया है प्लीज गो बैक एंड वॉच इट अगेन एंड कंप्लीट योर नोट्स, लेक्चर नोट्स बहुत अच्छे से बनाओ प्लीज, एंड देन कंप्लीट योर असाइनमेंट। थैंक यू।